कौन है? मेरे को पेपर ओपन करना। हेलो, am I audible?
Good morning, everyone. Is I'm audible? Yes, yes, please. Good morning, everyone. Is I'm audible? Yes, please. Okay. Good morning, everyone. On behalf of the Sports Authority of India, Indian Kayaking Canoeing Association, and Thai NCLFP, I, Kiran, your host, welcome you all to this Khelo India e-Pathshala Athlete Coaching and Education Program for kayaking and canoeing athletes. Now, it's my extremely pleasure to welcome our today's guest, Mr. Ananta Bo Thakur, kayaking and canoeing coach, Directorate Sport, Youth and Welfare, and San Kayaking Canoeing Association. I welcome you, sir, and invite you for the few words. Good morning, madam. Good morning, Hello. sir. Good morning, sir. First of all, as Sports Authority of India and LNCB Trivandrum Director M. Venkatesh Reddy, sir, respected IKCA Secretary General Prasanta Kushwaha, sir, and today training speaker PTG, sir, on सभी कोशिश और प्लेयर्स को मेरी तरफ से हेलो हेलो Yes, sir, आपकी आवाज आ रही है. आप कंटिन्यू रखें. और सभी कोचेस और प्लेयर्स को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग. Madam, highlight is मैं खेलो इंडिया ई पाठशाला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईकेसीए को धन्यवाद share his screen. देना चाहती हूँ. सभी प्लेयर्स को शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ कि कोविड-19 की वजह से जो ट्रेनिंग ऑफ हो गया था, जो आप लोग घर में रह के ऑनलाइन ट्रेनिंग के द्वारा आप लोगों को सेफली ट्रेनिंग करने का जो मौका मिला है ऑनलाइन के द्वारा, आप लोग बहुत ही लकी है क्योंकि जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहा है, वो जो ट्रेनिंग देता है वो सभी इंटरनेशनल कोर्सेज के द्वारा घर में रह के ही आप लोग को अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है. इसीलिए आप लोग ट्रेनिंग के टाइम में पूरा 100% ट्रेनिंग करना है और एक खुद को एक्टिव रह के अच्छा प्लेयर बनाना है. और सभी प्लेयर को जो ट्रेनिंग अभी मिल रहा है वही कोशिश लोग को इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करके इंडिया एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स के लिए भी प्लेयर तैयार करके वो इंडिया के लिए मेडल मिलता है. और इसी कोशिश के अंदर आप लोग को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रहा है, वही आप लोग को बहुत खुशी का बात है और लकी भी है. आप लोग घर में रह के भी इंटरनेशनल कोशिश के द्वारा आप लोग को ट्रेनिंग मिल रहा है. सभी प्लेयर को प्रैक्टिस के टाइम खुद को पूरा 100% देना है और वही प्रैक्टिस रेगुलर करते रहना है और खुद को एक अच्छा प्लेयर बनाना है. लास्ट में सभी प्लेयर को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरा अपना बात है, आप लोग कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागिए. आप लोग हर टाइम एक्सीलेंट करने के लिए कोशिश करना है. जो हमारा एक्सपर्ट कोच लोग बोलता है वही से आप लोग सीख के अच्छे से करना है. रोज एक्सीलेंट करने के लिए कोशिश कीजिए. आप लोग सक्सेस आप लोग का पास अपने आप आ जाएगा. और इस स्पोर्ट्स में एक चीज जरूर याद रखना है सभी प्लेयर को, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जो स्पोर्ट्स के साथ प्लेयर लेके जाएगा वही सबसे अच्छा प्लेयर बन सकता है. इसीलिए कभी भी आप लोग डिसिप्लिन को साथ लेके ही प्रैक्टिस करना है और जो कोच लोग साहब ने बोला है वही ट्रेनिंग
शुरू करना है। And last, I would like to thank Sai, Sports Authority of India, IKCA, inviting me as a guest and giving me opportunity to share my views with you. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir, for your such a motivational words. Thank you. Now let's move further, and I welcome our today's expert coach, Mr. L. Johnson Singh, senior coach and center in charge NCO Jagatpur, with lead coach Mr. Prithviraj Shinde, kayaking canoeing coach NCO Jagatpur, Odisha. Now today's training session will be taken by NCO Jagatpur. I hand over you to you, sir, and I welcome you, sir. Thank you, Kiran ma'am, for giving me the opportunity once again. And good morning to all of you. First of all, I would like to thank respected DGSI Sri Sandeep Pradhan sir, Secretary General Prasant sir, Indian Kayaking and Canoeing Association, Principal Regional Director G. Kishore sir, Director NCVLP Venkateshwar Reddy sir, respected coaches, all the athletes all over the India, and today's guest Anantaji from Assam Kayaking and Canoeing coach. So today's lesson is the whole body stability exercises for kayaking and canoeing. ये है हमारा आज का टास्क है, पर उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं जाना चाहता हूँ। जो लास्ट सेशन में हमने कायाकिंग के बारे में कैसे किसको कहाँ बैठाना है और उसका पैडलिंग का साइज क्या होना चाहिए, मैंने कैनोइंग में कैसे तरफ किसको कहाँ बैठाना है और पैडलिंग उसका साइज क्या होना चाहिए और कैसे तरफ मतलब सेटिंग करना है, ये सभी चीज में आज थोड़ा सा 5 मिनट टाइम देके मैं आपको बताना चाहता हूँ। जस्ट लाइक कायाकिंग की तरह से हम कैनोइंग में भी जब पैडलिंग है वो उसका साइज भी ज्यादा फर्क नहीं है कि इंडिविजुअल साइज से। मान लो जब C1 चलता है वही पैडल तकरीबन कैनोइंग में C2 में भी और C4 में भी यूज कर लेते हैं। पर इन सम केसेस कुछ पैडलर ऐसे है कि वो कुछ शॉर्ट डिस्टेंस में जो विथ पैडल जो उसका ब्लेड जो है चौड़ा वाला और शॉर्ट पैडल पकड़ता है इन सम शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, क्योंकि इसमें क्या पावरफुल स्ट्रोक मिलेगा प्लस आपका जब शॉर्ट पैडलिंग होगा आपका रेटिंग फास्ट होगा, ये एक एडवांटेज है। इसीलिए हर इंडिविजुअल हर पैडलर्स अकॉर्डिंग टू द रेस के हिसाब से आपका पैडल भी चेंज करना चाहिए। इट इज माय ऑब्जर्वेशन एंड इट इज रिटन आल्सो। तो हर इंडिविजुअल्स का मैंने लास्ट टाइम में मैंने बता चुका है कि कम से कम पैडल जो है 2-3 पैडल आपके पास रखो। कुछ शॉर्ट पैडल, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस चलाना है तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका पैडल अलग और शॉर्ट डिस्टेंस चलाने के लिए आपका जो ब्लेड थोड़ा चौड़ा वाला और शॉर्ट पैडल, क्योंकि इसमें आपका रेटिंग ज्यादा होगा और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको फायदा मिलेगा। ये जो चीजें हैं एक तो पैडल के बारे में, और उसके बाद C2 में और C4 में किसको कहाँ बैठाना है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहला जो बैठा है जो स्ट्रोकमैन है उसको सेम जस्ट लाइक कायाकिंग में मैंने बताया था, उसको भी दोनों को कंपैरिजन में उसको शॉर्ट हाइट होना चाहिए, उसका हाई एबिलिटी रिदम मतलब जो इसको फॉलो करने के लिए रेटिंग को दे सकता है, ऐसे तरफ उसको ऐसे वाला आदमी को आगे बैठाना चाहिए। The stroker should have a powerful water case, उसके साथ एक पावरफुल वाटर केस का एबिलिटी होना चाहिए, गुड रिदम, एक आसान रिदम के साथ, एबिलिटी टू अचीव ए क्विक एग्जिट विदाउट मेकिंग ए C1 J stroke। जो C1 कैनोइंग में क्या है C2 में आप
हर स्ट्रोक में जे स्ट्रोक बनाने का जरूरी नहीं है। तो आपको जब C1 में हर समय में आप जे स्ट्रोक बनाते हैं, ऐसे तरफ C2 में जरूरी नहीं है। इसीलिए उनके पास जो स्ट्रोकर मैन है, उनके पास एबिलिटी हाई रिदम और उसको क्विक एग्जिट जो तुरंत निकाल सकता है, ऐसा वाला जो आदमी जो है बैठाना चाहिए। एंड also have good balance in addition to the experience of passing and fighting. मान लो आप एक रेसिंग कर रहा है, एक 1000 मीटर का रेस कर रहा है और हमने स्टार्ट किस तरफ से लेना है, कितना स्ट्रोक रेट मैंने उठाना है, उसके बाद उसको एक्सेलरेशन में मैंने कैसे तरह उठाना है और ट्रैवलिंग पेस में मैंने क्या कौन सा रिदम में जाना है और जो साइड से जो आ रहा है हमारा जो बगल वाला जो अपोनेंट है उसको कैसे तरफ मैंने उसको बीट करना है। जो फाइटिंग स्पिरिट उसके अंदर में विल पावर होना चाहिए। दोनों के अंदर में बहुत कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों का साइकोलॉजी एक ही होना चाहिए या चारों का। पर इन सम केसेस ये जो स्ट्रोक्स मैन है उनको उनको जे स्ट्रोक्स लगाने का हर स्ट्रोक में जरूरी है, ये तो मैक्सिमम लगाता नहीं है C2 और C4 में। ये जो पीछे जो बैठा है, मानो C2 में भी पीछे बैठ रहा है जो स्टर्डमैन, इसको स्टर्डमैन बोलते हैं, जो रडरिंग जो कर रहा है, तो C2 में भी और C4 में भी जो उसका रोल है पूरा इसको बोट को कंट्रोल करके और सीधा लेकर जाना, उसका रोल है। जो पीछे जो बैठा है उसका सबसे बेस्ट होगा कि जब कैचिंग जो दोनों का तालमेल एकदम एक ही साथ, मतलब जो पैडलिंग जो गिरता है एक ही साथ गिरेगा तभी उनका बोट भागेगा। C4 में इन सम केसेस जो रडरिंग जो कर रहा है, पीछे जो कर रहा है उसका कभी कभी तीनों के साथ मिलता नहीं है, पर वो पैडलिंग उसको कंट्रोलिंग करने के चक्कर में उसका अतर में पानी में ही रहता है। तो उसको मैनेज करना है कि जब रिकवरी फेस आता है उनका, मतलब जो पानी से ऊपर जो आता है उस समय में जो मैक्सिमम जो ये जो साथ तरफ मैंने उसके ताल कैसे वाला जो फुट है और नीलिंग नी एंड जो पीछे वाला जो आपका जो फुट है, ये तीनों जो पॉइंट है, एक तो फ्रंट फुट, एक नीलिंग जो नी है जो बीच में जो है आपका जो नीलिंग कर रहा है, और पीछे वाला जो फुट है जो कर्लिंग का पोजीशन में रहता है। तो ये तीनों जो है C1 में आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में है ना, उसको पोजीशन में रहता है। पर इन केस ऑफ C2 एंड C4 ये जो हमारा जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन में तीनों का तीनों आपका फ्रंट फुट, नी एंड जो पीछे का आपका जो कर्लिंग जो फुट है, इसको जो कैनो का जो एक सेंटर लाइन होता है उसी लाइन में आपको तीनों का तीनों जो पॉइंट है उसको होना चाहिए। यही है कि C1 में थोड़ा ऑब्ट्यूस एंगल आपका थोड़ा सा नी पैड जो है आपका तीनों एक लाइन में नहीं होता, और पर C2 में मैक्सिमम सेंटर लाइन। इसमें लिखा है कि in a single canoe the support foot, the kneeling knee and the foot should lie closely on the center line. सेंटर लाइन में आपका ये होना चाहिए तीनों का तीनों। और यही आपका और उसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो समटाइम्स इवन पेलर्स विद डिफरेंट स्टाइल्स कैन मेक अप ए गुड टीम। अगर मान लो हर किसी टेक्निक तो हर मतलब गेम का टेक्निक तो बराबर होता है, पर स्टाइल हर किसी का स्टाइल अलग अलग होता है।
तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वाला मान लो आप C2 में C4 में बैठा दिया, पर ऐसे कोई जरूरी नहीं कि वो एक सक्सेसफुल C2 या C4 नहीं होगा। अगर चारों को एक साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वाला बैठाने से भी ये इसमें लिखता है कि sometimes even paddlers with different styles can make up a good team if they have complement each other technically and master a good harmony and rhythm। अगर उसके अंदर में हारमोनी और रिदम एक ही साथ होता है और आपस में ठीक से बात करता है। C4 और C2 में क्या प्रॉब्लम है कि जो कोई भी गलत करता है वो आपस में जो बताता नहीं है, मतलब एक दूसरे को उसका इल्जाम लगाता है कि आपने ठीक नहीं किया, आपने मतलब उस समय में ये उठाना चाहिए था, उस समय में आपने नहीं, तो आपस में ये क्या है देते रहते हैं। तो उसको अगर चारों के चारों अगर उनके मन में ठीक से बोलते हैं, बोल चाल टेक्निकली साउंड, हाँ ठीक से बातचीत करता है, आपस में मोटिवेशन ठीक से बात करता है, अगर ऐसी तरफ चलेगा तो आपका बोर्ड भी चलेगा। तो ये है, अगर कुछ सिचुएशन में क्या है कि मैं अकेला खिंच के आया हूँ, ये जो बोर्ड है मैंने पूरा अकेला खिंच के आया हूँ, ऐसे तरफ कुछ लोग भी बोलता है। ये क्या वो क्या है कि साइकोलॉजिकली उसको हैंडीकैप हो जाता है उस समय में, इसीलिए दोनों का तालमेल नहीं मिलेगा। तो आप जितना भी C1 में भी जितना अच्छा हो, वो एक C2 में ऐसे कोई जरूरी नहीं कि C1 में जो हर किसी जो खिलाड़ी है वो C2 में भी अच्छा बने, ये है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारा जो 2003 या 2003 से लेकर 2013 तक हमारा सर्विसेज टीम में दो लड़का है, दो पैडलर्स है कैनो का, एक सत्या है, एक दीक्षित है। वो दोनों सिंगल में ज्यादा अच्छा नहीं है, जब सिंगल जो करता है तो हर समय में वो पीछे आता है, पर जब जो डबल में जब दोनों उतरेगा तो सभी जो सर्विसेज जो टॉप है टीम, उसको भी मान लो ये दोनों कभी भी मान लो बहुत मुश्किल सर्विसेज टीम में इनका मौका मिलता है, ये कहीं दूसरा स्टेट से या उत्तराखंड से या कहीं दूसरा स्टेट से खेल लेता है तकरीबन जो सेकंड टीम से, तो क्योंकि सर्विसेज टीम में सिंगल में तकरीबन ट्रायल होता है पर उनका ट्रायल जो एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, पर ये दोनों जब डबल उतरता है तो सर्विसेज टीम भी उनको डरता है अगर ये दोनों आ गया, और वो मेडल भी लेता है, गोल्ड भी लेके कई बार वो लोग ने दिखा दिया। पर मेरा ये एग्जांपल है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो C1 में जो अच्छा करता है वो C2 में भी अच्छा करे, पर उनके बीच में दोनों के बीच में बहुत तालमेल अच्छा था कि मान लो ठीक से करता था, आपस में सोता था, आपस में मतलब हम भी उनके साथ रहता है, इसलिए पता चल जाता है कि दोनों को बातचीत ठीक से करता है और मान लो एक फ्रेंडशिप, अच्छा फ्रेंडशिप बना के रहता है। तो इसलिए आपस को जो मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है कि मान लो आप एक टीम बोर्ड चलाता है। तो आज का टीम बोर्ड का सेशन इतना है, मैं कंक्लूडिंग पार्ट में थोड़ा C1 और C2 के बारे में थोड़ा और बता दूंगा। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है ये होल बॉडी स्टेबिलिटी एक्सरसाइज फॉर कायाकिंग एंड कैनोइंग, ये हमारा थोड़ा सा टफ होगा आज का, क्योंकि बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। तो जो पहला जो हम लोग ने करके आया था उनसे थोड़ा सा हट के हम लोग अभी उसको एक न्यूली किया है। तो सभी जो बच्चे हैं, सभी एथलीट्स है, उसको ये थोड़ा सा हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन देगा। पहला हम लोग वार्म अप सेशन में करेगा, उसके बाद हम आपको डिमोन्स्ट्रेशन देगा, तो उसको फॉलो करने के लिए आप कोशिश कीजिए। तो फॉर टुडेज वार्म अप सेशन आई हैंड ओवर टू मिस्टर पृथ्वी सर to take the session for warm up. And I call upon Miss Asmita Kuju, Rasmita South, and Prithvi sir, please take the session for warm up. थैंक यू सर फॉर योर नॉलेज। अभी सभी को पता चल गया कि C2 किस तरह टीम बोर्ड का ट्रेनिंग किया जाता है या कायाक में या K4 में। अब हम मेन सेशन की तरफ जाएंगे। स्ट्रेचिंग
सबसे स्टार्टिंग स्टेज में सबसे है कि सूर्य नमस्कार चेंज change 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 रिलैक्स। यहाँ नेक से होती है, नीचे की तरफ जाएंगे, टॉप से लेके बॉटम में जाएंगे। Change other side. Change up. पूरा स्ट्रेच करना है। Down. Change. Shoulder stretch. Change other side. Change. Stretch. Change other side. Change का change other side. Change. पूरा स्ट्रेच करना है। Change other side. Change. इसी में अभी राइट साइड में ट्विस्ट होना है। Change, turn to your right side. Change, other side. Change. Change, other leg. Change, थोड़ा लेग स्प्रेड करना है।
होल्ड करना है पूरा। कोशिश कीजिए कि आपका जो सिर है जो नी को लगे। चेंज, अदर साइड। चेंज, दोनों लेग नजदीक लाइए। इसमें आपका hamstring मसल भी स्ट्रेच हो जाएगा, ग्लूटेस मसल भी स्ट्रेच हो जाएगा, ट्रंक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। चेंज, क्रॉस लेग। इसमें आपका काफ मसल भी स्ट्रेच हो जाता है। चेंज, अदर लेग। अभी टो को खींचना है। चेंज, अदर साइड। चेंज, पीछे की तरफ। अपना एंकल जो है उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, नीचे की तरफ पूरा दबाना है इसको। चेंज, अदर साइड, अदर लेग। रिलैक्स। ये था हमारा स्ट्रेचिंग का। हम वार्मिंग की तरफ जाएंगे। हम start करेंगे ओके, इसमें हम जो है 30 सेकेंड हर एक्सरसाइज 30 सेकेंड परफॉर्म करेंगे, स्टार्टिंग विथ जंपिंग एक्सरसाइज। रेडी, जंप 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 जंप। कम ऑन कम ऑन। चेंज, हाई जंप हाई जंप हाई जंप हाई जंप। पूरा ऊपर जाने की कोशिश करो। चेंज, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। चेंज, साइड किकिंग। शाबाश शाबाश, कीप गोइंग। चेंज, फ्रंट किकिंग। शाबाश शाबाश शाबाश। चेंज, जंपिंग जैक जंपिंग जैक। चेंज, चेंज, हाई नी। पूरा ऊपर की तरफ 90 डिग्री में पेट ऊपर आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, कीप गोइंग कीप गोइंग। चेंज, बैक किकिंग।
Change, star jump. Come on, come on, come on. Change, push-ups. Come on, come on. पूरा नीचे तक जाना है. शाबाश, शाबाश, शाबाश. पूरा बॉडी को पूरा वार्म करना है. चेंज, सिटअप, सिटअप. जल्दी. रिलैक्स. दिस इज वाज अ वार्मिंग पार्ट. अभी हम डायनामिक स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे. डायनामिक स्ट्रेचिंग भी हम सेम करेंगे. ऊपर से नीचे की तरफ. हाफ फुल रोटेशन नहीं करना है इसमें, सिर्फ हाफ ही करना है. रेडी, स्टार्ट. पहले फ्रंट साइड में करना है, उसके बाद बैक साइड में. चेंज, बैक साइड. चेंज, अप डाउन. चेंज, साइड. चेंज, शोल्डर रोटेशन करना है इसमें. फ्रंट, उसके बाद फिर रिवर्स में जाएंगे. चेंज, रिवर्स. चेंज. चेंज, wrist rotation. Change, reverse. Change, single hand rotation. Reverse. Change, other hand. Reverse. Change, both hand. जब भी आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो, कि मेक श्योर कि आपका हर बॉडी पार्ट का स्ट्रेचिंग होना चाहिए. रिवर्स. Change. 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 Alternate toe touch. Change, four touch. Four touch.
Change. Toe rotation. Change. Change, reverse. Change, other leg. Reverse. Relax. डायनेमिक स्ट्रेचिंग पार्ट फिर हम मेन टास्क के तरफ चलेंगे मेन टास्क लेके जो सर थैंक यू पृथ्वी सर। सो हम अभी मैन टास्क की तरफ चलते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए और एथलीट आ जाओ। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आ जाओ। पहला मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन का टॉपिक है एक्सरसाइज कैनोइंग। फर्स्ट एक्सरसाइज जो सुमो जो उसका होता है ऐसे तरफ थोड़ा नीज को थोड़ा फैला के और स्काउटिंग पोजीशन में रहेगा। थोड़ा जो टोस है साइड में, टोस साइड में करके रखेगा। उसके बाद साइड ऑल्टरनेट, एक हाथ सीधा करेगा और जो दूसरा वाला हाथ है हाथ पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज। द सेकेंड एक्सरसाइज इज स्टैंडिंग क्रंच विथ अंडर द लेग क्लैप। आप सीधा खड़े होना है और उसके बाद बॉडी झुके और अंदर में क्लैपिंग और ऊपर में क्लैपिंग। ठीक है, ऑल्टरनेट 10 रिपीटेशन। द थर्ड वन इज क्रस्टी लंज विथ ऑब्लिक क्रंच। सीधा खड़े होके और जो ऐसे और जाएगा मतलब तो जमीन पे नी टच नहीं करेगा। एक बार और करो, साइड पीछे, हाँ ऐसे कर। ठीक है। द फोर्थ एक्सरसाइज इज प्लैंक विथ फ्लाइंग प्लैंक आर्म्स। ये ऐसे प्लैंक पोजीशन, उसके बाद फिर आगे हाथ नीचे और आराम आराम से करेगा। ठीक है, ऐसे तरह। द फिफ्थ एक्सरसाइज इज रोलिंग फॉरआर्म साइड प्लैंक्स। ऐसे पोजीशन में रहेगा और साइड एकदम जो फुल स्ट्रेस हाथ शिफ्ट प्लैंक पोजीशन। ठीक है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आर्म सीक्वेंस विथ लिफ्टेड हील्स। आपका घुटना या नी ऊपर उठाना है। 6 एक्सरसाइज दिखा तो। बोतल, इसमें हाथ में बोतल ले लीजिएगा, दोनों बोतल है ना। तो हिलिंग में रहेगा, फिर ऊपर उठाएगा, फिर नीचे, फिर उसके बाद बाइसेप कर्लिंग जो आता है इसी तरह ऊपर नीचे एंड बाइसेप कर्लिंग। और हमेशा आप हिल ऊपर उठाएगा और थोड़ा सा बेंडिंग पोजीशन में रहेगा।
ठीक है. The eighth exercise is single leg squat. सभी कहता है कि सिंगल लेग स्क्वाट आगे. ठीक है. Ninth exercise is single leg jump squat. सिंगल लेग जंप स्क्वाट. फिर जंप करना है और फिर आना है सिर्फ पोजीशन में, जंप करके फिर आना. ठीक है. The 10th exercise is single arm row. जो हम यूज करके जो रोइंग करता है ना, ऐसे तरफ ये सीधा रहेगा. एक बोतल ले लीजिए, इधर इस तरफ दिखाओ. हाँ. और ये सीधा रहेगा. उसके बाद हाँ ऐसे. ठीक है. सिंगल आर्म रो. 11th exercise is skeletal squat. Skeletal squat. kneeling position, ये अपना position. ये रहेगा ना. Next is T-step with knees and a side bend. टच करना है, नीचे भी टच करना है. एक बार और दिखाओ. और बॉडी. और the last exercise is single leg V-up. ये थोड़ा लेट करेगा. हाथ पीछे जाएगा. हाँ. उसके बाद जब ये उठेगा, ये जो नीचे वाला जो हाथ है ये सपोर्ट लेके उठेगा और तो टच करेगा. ठीक है. जो नीचे वाला जो हाथ है पीछे जो ग्राउंड टच कर रहा है उसको थोड़ा बॉडी के पास लेकर आ जाएगा. और उसके बाद बॉडी को उठाएगा, उसके बाद तो टच करेगा. यह आज का 12 स्टेशन है. 30 सेकेंड वॉक है और 10 सेकेंड रेस है. तो 2 सेट होगा हमारा जो आज का ट्रेनिंग सेशन जो है. एक सेट के बाद हम लोग 3 मिनट रेस्ट करेंगे. सो एथलीट्स अपना अपना पोजीशन में खड़े हो जाइए और अपना अपना जो कैमरा के सामने आके एक्सरसाइज को एंजॉय कीजिए. Sumo squat with sumo squat. Four, 6, 7, 8, 9, 10 with under the leg. Use is with okay. Position. 4, 5, 6,
7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. The fourth exercise, plank with strength and arm. Front, hard front plank, with back, with front, and okay, position. Back, front, and arm. Sense. Body थोड़ा down. Okay. Come on. The fifth exercise is rolling forearm side plank. और अपना दोनों हाथ को क्लोज में इसी तरह सामने नहीं रखना है, इसी तरह. Okay. Yes. Kawan-kawan penggut, betul. Last 10 seconds. आप exercise arm sequence with ये ऐसे रहेगा, फिर उठाएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे बाइसेप जो कर्ल होता है ऐसे. Down and bicep curl. Okay, heel उठाएगा इसी तरह. Yeah. The seventh exercise is stand with hinge and bend. नीचे जाके two, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, मैनेज करेगा. The eighth exercise is single leg squat.
अपने पैर को सामने रखें, उसके बाद आप एक 5 7 4 5 7. The next exercise is single leg jump and squat. Okay. Single leg jump and jump, stop. Change leg. Yes, teman-teman. थोड़ा डिफिकल्ट है. Is single control. लेग से नीचे पीछे वाला वो सीधा रहेगा. उसके बाद ड्रॉ की जो हम लोग ड्रॉइंग करते हैं. ओके. पैर सीधा उठाइए. एल से पूरा 90 डिग्री. The 11th exercise is stiletto scarf. Kneeling position, full scarf. Okay. अपना मेरे पास है. The last exercise is single leg up, single leg D. लाके पहला हमारा पहला सेट खत्म हुआ है. आपका पानी थोड़ा 2 मिनट के लिए. क्या बोल रहा है?
ओके ऑल एथलीट्स, हम सेकंड से शुरू होने वाला हूँ। अपना अपना कैमरा सामने, आपको पोजीशन होना चाहिए। जो हीलिंग पोजीशन नहीं हो रहा है तो बैलेंसिंग एक्सरसाइज मतलब आपका, सॉरी सर, ब्रेक हो रहा है बहुत देर से सर, अच्छा आवाज ब्रेक हो रहा है हाँ सर। ओके, जो सभी एथलीट्स जो कैमरा के सामने आइए और मैक्सिमम जो breaking more. If you come and get your unity, it is clear. ओके सर। हाँ ठीक है, ओके सर, सेटिंग सर। ओके, सेकेंड सेट हम शुरू करेंगे। अपना अपना पोजीशन पे रहिए। जा रखिए और ऊपर से शुरू करें, ठीक है। ओके, बॉडी नीचे लाइए।
जॉनसन सर, आपकी आवाज ना फ्रंट पे सर जॉनसन सर, आप अगर थोड़ा फ्रंट आएंगे तो आपकी आवाज क्लियर है। आप बैक जा रहे हैं, शायद आवाज नहीं आ रही है। Position. Okay. Arms up. Okay. Position. आगे पीछे आगे and yes. आगे पीछे आगे आगे हेलो जॉनसन सर। जॉनसन सर, आपकी आवाज ना पीछे ब्रेक हो रही है। आप ऐसे तरफ क्लोज करो ना बॉडी की तरफ और अब बैक पहला शुरू करें सीधा आराम से down and bicep Not break हो रहा है और clean position up, down, up, down. The second exercise is T-stand with hinge and side bend. Front touch and नीचे झुके. Okay. Position. Yes, one. जो पीछे वाला जो पैर है उसको सीधा. The eighth exercise is single leg squat. हाफ स्क्वाट करना है आपने. सिंगल लेग सामने रखे पैर. ओके. बैलेंस बनाइए. Change. The ninth exercise is ये भी सेट स्क्वाट है.
सिंगल लेग जंप स्क्वाट, जंप करना है। ओके, ये थोड़ा टफ है, बाकी बच्चों को भी फॉलो कीजिएगा। जब नीचे आता है थोड़ा सा स्क्वाटिंग पोजीशन में रहना है। चेंज चेंज, नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंगल आर्म रो। अपना बोतल पकड़ लीजिए और पैर नीचे, पैर सीधा रखिएगा, स्ट्रेट। सामने देखिए, सामने देखिए। लेग चेंज, अभी सिर्फ 2 एक्सरसाइज बाकी है आज का ट्रेनिंग सेशन का। द 11th एक्सरसाइज इज स्टिलिटो स्क्वाट, kneeling पोजीशन, ये हिलिंग पोजीशन, स्टॉप। Come on, 10 seconds. The last training, the last session for today's session is single leg V up. सामने रखे हाथ और एल्बो के पास लाइए, और जो बॉडी के पास जो हुआ जो हाथ है उसको थोड़ा लाएगा, उसके बाद फिर उसी के सपोर्ट से अपना बॉडी उठाएगा और उतरने जो हाथ से लेग तक क्रॉस करेंगे, तो तस करेंगे। पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 come on 4 5 6 7 सो हमारा आज का मैन टास्क यहीं पे खत्म हुआ है। बच्चे अपना अपना थोड़ा पानी पी लीजिए और हम अपना कूलिंग डाउन सेशन में आते हैं। सबसे जरूरी है कि स्टेबिलिटी जो एक्सरसाइज है ये हमारा कायाकिंग कैनोइंग में बहुत मतलब बैलेंस का जरूरी है। विदाउट बैलेंस आप जितना भी स्ट्रेंथ बना लीजिए, आप जितना भी एंड्योरेंस बना लीजिए, विदाउट बैलेंस का इस गेम में कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो बैलेंसिंग जो एक्सरसाइज है ये आपके अंदर में बैलेंसिंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। तो आज एक्सरसाइज है ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और घर में भी यही चीज जो है आप लोग करके रखिए। अगर जाता है जो यूट्यूब कौन सा दिन तक देखना है, आप यूट्यूब सीख सकता है। हमारा एक्सपर्ट कोर्सेस बता चुका है, इसको आप लोग फिर सुन सकता है। आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी नॉलेज लेने के लिए, और हमारे समय में ऐसा नहीं था कि बहुत एक नॉलेज लेने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, पर आपको डेडिकेट मिल रहा है, इसका फायदा आप ले लीजिए। और हम कूलिंग डाउन सेशन के लिए मेरा जो कोच है पृथ्वीराज सर,
तो मैं इसको allow कर रहा हूं। Thank you, sir. It was a wonderful session. अभी हम कूलिंग डाउन की तरफ जाएंगे। हम अभी जैसे कूलिंग डाउन में अपना स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर आएंगे हम। तो हम जो है लोअर बॉडी से स्टार्ट करेंगे, लोअर बॉडी से होते हुए ट्रंक के होते हुए अपर बॉडी की तरफ जाएंगे। अब अभी स्टार्ट करेंगे लोअर बॉडी से। इसमें आपको 10 सेकंड होल्ड करना है। प्लीज स्टार्ट कीजिए। चेस्ट, क्रॉस लेग। अपना जो सर है वो नीचे लगाना है। जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो ध्यान देना है कि आपने जो टास्क किया है उसके ऊपर से मसल स्ट्रेच हो गए, तो उसी को हम स्ट्रेचिंग करना है। जो मसल यूज हो गए उसी को हमें स्ट्रेच करना है। चेस्ट, अदर लेग। जो हमने परफॉर्म किया है तो कौन से मसल इसमें यूज हो गए, तो इसी मसल का हमें स्ट्रेचिंग करना है। चेस्ट, रेडियो लेग। Chest, other side. Chest. दोनों खींचना है अपनी तरफ। Chest, other side. Chest, spread your leg. आगे आना है थोड़ा। चेस्ट, इसी में पीछे जाना है। चेस्ट, chest, other side. Chest. Chest. अभी हम नीचे से मसल स्ट्रेच करेंगे। अपनी तरफ मैक्सिमम कोशिश करो, जो अपना जो नी है चेस्ट को लगाने की कोशिश करो। इसमें आपको बॉडी सीधा रखना है। चेस्ट, अदर लेग। चेस्ट, और सब मसल आप स्ट्रेच करेंगे बीच में। आपका एंकल भी स्ट्रेच हो जा रहा है इसमें। अपना घुटना है दूसरे घुटने के नजदीक रखना है। चेस्ट, अदर लेग। चेस्ट, अपना जो दूसरा जो हाथ नहीं है इसको थोड़ा नीचे लगा के ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। नीचे हाथ लगाइए, ऊपर की तरफ पुश करना है थोड़ा। चेस्ट, अदर लेग।
Change. Change. दोनों पैर नजदीक लाइए, यहाँ थोड़ा स्ट्रेट करें। Change. Other side. Change. Front straight. Change. सेम हैंड नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। चेंज, हैंड चेंज, थोड़ा स्ट्रेच, चेंज, चेंज, वैसे और टर्न हम स्ट्रेच करेंगे सीधा। चेंज, अदर साइड, चेंज, change, other side, change, up, change, down, रिलैक्स। तो ये था हमारा जो था कूलिंग डाउन सेशन में थोड़ा आज का जो है स्टेबिलिटी एक्सरसाइज क्यों करवाए। देखो मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं स्टेबिलिटी वाले आज आप क्या ऑब्जर्व करेंगे मोस्ट ऑफ जो एथलीट्स देखिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। स्टेबिलिटी एक्सरसाइज इसलिए करते कि कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, स्ट्रेंथ और जॉइंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। हमारे गेम में सबसे इंपॉर्टेंट तो बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है आपके पास पावर है तो आप बोर्ड उठा नहीं पाएंगे। बोर्ड में अगर बैलेंस ही नहीं है आप कैप्चर हो जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है तो इसी एक्सरसाइज के द्वारा आपका स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। उसमें आप कोऑर्डिनेशन भी आता है, उसके साथ आगे बैलेंस भी आता है। मोस्टली अभी देखा है कुछ एक्सरसाइज करने में काफी डिफिकल्टी आ रहा था क्योंकि अपर और लोअर बॉडी का उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें अपर और लोअर बॉडी का हमें स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करना होता है। और स्टेबिलिटी जो एक्सरसाइज है आपको जो इंजरी हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए भी मदद करता है स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। तो ये हमें ध्यान देना है कि एटलीस्ट अपने सेशन में 2 या 3 सेशन में स्टेबिलिटी एक्सरसाइज ये करना जरूरी है। तो इसके द्वारा आपके इसमें स्ट्रेंथ भी आएगा, कोऑर्डिनेशन भी आएगा, बैलेंस भी आएगा, तो आप अच्छे परफॉर्म करेंगे। और जिसमें हमारे इसमें तो मैक्सिमम जो है बैलेंस इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी एक्सरसाइज करने से आप अगर आपका अच्छा है, कोऑर्डिनेशन आप अच्छा है तो एजिलिटी वर्कआउट जो है, स्पीड वर्कआउट कोई भी आप आराम से इजीली परफॉर्म कर पाओगे। तो यही था आज का जो है। अभी मैं कंक्लूजन पार्ट के लिए मैं जॉनसन सर को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू। एथलीट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्ट सर से, जॉनसन सर से पूछ सकते हैं। और जिसको भी क्वेश्चन है कैन रेज योर हैंड। आप वीडियो में अपना हाथ दिखा सकते हैं या फिर आप अपने चैट बॉक्स में रेज योर हैंड का ऑप्शन आता है उसमें कर सकते हैं हैंड रेज। एनी एथलीट हैव एनी क्वेश्चन?
नहीं आ रहेगा. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. Hello, am I audible to all of you? आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Hello. Hello. Oh, okay, okay, मैम आ रहा है आवाज. तो Yes, मैं sir. Yes, sir. You are audible. Sir, questions ले लीजिए अगर कोई भी बच्चा पूछना चाहे. मैम अभी थोड़ा मैं ना कंक्लूडिंग पार्ट में 2 मिनट के लिए मैं टाइम लेना चाहता हूँ. Okay, okay, sir. Okay. जो कंक्लूडिंग पार्ट जो है, जो ऑल एथलीट्स प्लीज लिसन, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग को टाइम दूंगा. तो डिफरेंस बिटवीन C1 एंड C2, C1 और C2 के बीच में क्या फर्क होता है, ये आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बताना चाहता हूँ. ये बोथ के साइज में भी और वेट में भी फर्क है. C1 का वेट 14 kg है और C2 का वेट जो है 20 kg है. तो जो C1 में जो है वन पैडलर्स, वो जो एक ही पैडलर्स बैठेगा और C2 में डबल बैठेगा. ये तो आप लोग सब पता है. और C1 में जो मैंने पहले भी बता चुका है कि पोजीशन ऑफ द फीट एंड नी, दोनों का द फ्रंट फुट, मिलिंग नी एंड पीछे का जो आप कर्लिंग ऑफ जो फुट है, वो तीनों जो है इसको एक ट्रायंगल शेप में रहता है. और C2 में पोजीशन ऑफ द फीट एंड नी इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में रहता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में. ये आपको ध्यान देना है कि ये नहीं बैठना कि C1 की तरह नहीं बैठना. आप जो तीनों जो आपका फ्रंट फुट, मिलिंग नी एंड जो पीछे का जो फुट है, वो उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है C2 में. ये ध्यान देना है. सभी बच्चे इसमें काफी जो सीनियर तो होगा उन लोगों को पता चला होगा, पर कुछ जो नया बच्चे हैं उनको ध्यान देना है कि अभी से कि आपको जो C1 में जो बैठा है इसी तरफ आप C2 में नहीं बैठेगा. और C1 में क्या हो कि स्टीयरिंग एट द एंड ऑफ एवरी कैस्ट्रो, स्टीयरिंग एट द एंड ऑफ कैस्ट्रो, हर समय में आपका एक स्टीयरिंग जरूरी होता है C1 में, जो एक जे स्ट्रोक होता है तो कैनो में. तो उसको हर मोस्टली हर ऑलमोस्ट हर पैडल में आपको जे स्ट्रोक यूज करना पड़ता है. पर C2 में क्या है, स्टीयरिंग सेल्डम नीडेड, कभी कभी जरूरी होता है. तो हर समय में C2 में ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जे स्ट्रोक ही मारते रहो जो पीछे वाला जो बैठा है. तो जब जरूरी होता है तो उसको उस समय में जे स्ट्रोक यूज करता है, मतलब स्टीयरिंग सेल्डम नीडेड. उसके बाद यूनिफॉर्म पैडलिंग रिदम, एक C1 में एक रिदम में आप जा सकते हैं. C1 में मतलब एक पैडलिंग एक रिदम लेकर जाना पड़ता है C1 में. पर C2 में द रिदम चेंजेस, आप कभी कभी ये फास्ट कभी कभी स्लो, मतलब रिदम चेंजेस होता है C2 में. ठीक है. उसके बाद स्ट्राइक लेंथ इज लॉन्गर, C1 में आपको जो स्ट्रोक लेंथ है ये ज्यादा होगा और C2 में आपका स्ट्रोक लेंथ इज शॉर्टर, थोड़ा सा कम होगा. जो C1 का जो लेंथ है आपका स्ट्रोक लेंथ है, उसी से आपको C2 में थोड़ा सा कम होगा जो स्ट्रोक लेंथ है. और उसके बाद नेक्स्ट क्विक वाटर केस, आप जब वाटर केस लेता है तो C1 में क्विक मतलब जो फास्ट, और C2 में क्या है, स्ट्राइकिंग क्विकर केस, मतलब इसमें स्ट्राइक करके जो एक वर्ड यूज करता है. जो C1 में क्विक बोलता है और C2 में स्ट्राइकिंग क्विकर केस, और ज्यादा जो C1 में जो ले रहा है उससे ज्यादा फास्ट. स्ट्राइक मतलब आप कैरम खेलता है तो एक स्ट्राइकर होता है ना, तो मतलब जो एकदम मारता है उस समय इसी तरह आपको स्ट्राइक करना है जो कैचिंग में. उसके बाद क्विक एग्जिट मूवमेंट, C1 में आपका जो एग्जिट है उसको क्विक करना है, मतलब फास्ट निकालना है. पर C2 में क्विकर एग्जिट मूवमेंट, C2 में और ज्यादा क्विक से और ज्यादा क्विकर, इसमें एक वर्ड आता है क्विक और क्विकर, है ना. जो क्विकर एग्जिट मूवमेंट, ये जो है C1 और C2 का फर्क है. और इतना आज के लिए, आज सेशन के लिए इतना ही है मेरा. और थैंक यू टू डायरेक्टर Sai and CV LEP for giving me the opportunity once again. And I hand over, and कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं.
अगर आपको कोई डाउट है तो हम लोग फोन पे भी पूछ सकता है, और मैं अपना जो माइक है मैं हैंडिंग ओवर माय माइक टू किरण मैम. थैंक यू किरण मैम. Thank you so much, sir. Thank you. Now for the vote of thanks. Is any question? Is there any question from athletes? I think no one wants to ask. Is Paulus sir is there? Good morning, Paulus sir. I think he's also good. Okay, now let's conclude this. Now for the vote of thanks, I would like to invite our director sir, Mr. Shri M. Venkateshwar Reddy, Director NCO LRP, for the vote of thanks. Good morning, everybody, and distinguished chief guest of the day and expert panel coaches from Sports Authority of India and IKCA, and senior coaches, diploma trainees, parents, and participants from all over India. Ladies and gentlemen, Khelo India E-Pathshala Athletic Coaching and Education Program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellence, LRP, and co-hosted by NCOE Jagatpur. This is the initiative by DG Sai, Mr. Sadeep Pradhanji. This online ACAP being created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and latest techniques in the sport. The program is aimed at the intermediate level athletes, and this program is being supervised by a panel of experts from Sports Authority of India and IKCA. And this online program is available in Khelo India E-Pathshala in YouTube and Facebook for your reference and corrections. This program can be attended by any of the schools, clubs, academies, state athletes, and the district athletes. It is free for all to give the advanced skills at intermediate level all over India. Today's chief guest, Mr. Ananta Bora Thakur, Canoeing Kayaking coach and Directorate of Sports and Youth and Welfare, and Assam Canoeing Kayaking Association member. And I thank you, sir, for being with us and patiently listening to us and observing the program and giving a good advice and motivation to the athletes to become an international athlete. They have to keep themselves fit. Your valuable session on this is very good, and advising and motivating them that athletes being trained by the international coaches and expert coaches, so which makes them to concentrate well and perform well at the international level. Thank you, sir. Thank you for being with us. I also thank my colleague and Al Jansen Singh, coach and in charge NCOE Jagatpur, for his wonderful session on building technique in team canoeing, and especially the benefits or differences of C1, C2, their way of participation in the and cooperation in the competition. And he also given a good demonstration on whole body stability exercises for canoeing and kayaking athletes. And it is a very good and new exercises for athletes and who have experienced very well
with an enthusiasm of learning more. I also thank Mr. Prithviraj Sinde, who has demonstrated warming up and stretching exercises for cooling down, which are also new to the athletes. So this was a very good program for athletes from Johnson Singh Ji and as well as Prithviraj Sinde. Thank you, both of you, for a good demo. I also thank the athletes who have given a good demo. And I also thank our regional director, LNCP Trivandrum, Dr. Kishore for guiding us in this program. I also thank our program head, Mr. Sajid Thomas, Arjun Awadi, and coach of our NCUA LP. And I also thank our program director, Mr. Siji Kumarji, Asian medalist, NCUA LP. I also thank officials from Sports Authority of India and IKCA with a panel of experts, and our HPD and HPMs for guiding us all through the program. I also thank the parents who have cooperated with us and making the children to participate in this program. I also thank the participants and athletes from Regional Center Bhopal, Alapi, Lucknow, Kolkata, Andaman and Nicobar, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, AP, Punjab, Telangana, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, and athletes from rest of India. I also thank our anchor who is coordinating with us in conducting this program, Dr. Kiran Singh Ji. Thank you, madam. Thank you, one and all. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एथलीट से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ आपके ही लिए है, तो प्लीज मतलब क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट ना हो। मतलब ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस होते हैं, सजेशन आप अगर चाहते हैं, कोई फीडबैक अगर आप चाहते हैं, तो प्लीज आप या तो मैसेज कर दें, हैंड रेज करें, या फिर वीडियो में ही अपना हाथ दिखा दें, क्योंकि ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल है जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। थैंक यू everyone. Now we are signing off for today and will meet you on Tuesday. Thank you everyone. Thank you.